Good morning, students. Welcome back to our video session in which we people are discussing the sample paper of 2021. तो अभी तक के वीडियो सेशन में ठीक है ना, we people have discussed the section A 1 marks questions, okay now what we have finished till now with the chapter. That means अभी तक हमने जिन चैप्टर्स से डील किया है या जिन चैप्टर्स को हमने फिनिश आउट किया है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. सो नाउ इन टुडेज वीडियो सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 5 or 6 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी. गॉट इट? दैट मीन्स वेयर वी गोना डिस्कस 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26. ठीक है, ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21. ओके, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन नंबर 21, एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें एक इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की है. ओके, द क्वेश्चन इज बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स but still plays a significant role in the process of digestion. Justify the statement. Okay, so the question here is indicating, question में ये बताया जा रहा है कि bile juice which is secreted or released by the liver, जो bile juice secrete हो रहा है liver से, it doesn't have any kind of digestive enzymes in it, उसमें किसी तरह के digestive enzymes present नहीं है, but still it acts or it plays a very significant role in the process of digestion. So we have to justify this statement. हमें इस statement को justify करना है. So how we are going to answer it out? We know that bile juice which is secreted by the liver. Okay, no? Bile juice secreted by the liver, what it does? It actually makes the acidic food alkaline which is coming out from the stomach. So when the food comes out of the stomach, it is basically acidic in concentration because of the addition of HCl in the stomach. तो जब ये food बाहर आता है यहाँ पर, so this highly concentrated food may not be suitable for the enzymes which are going to be released by the small intestine or in the pancreatic juice. तो ये एसिडिक मीडियम उन एंजाइम्स को नहीं चाहिए, उन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए. सो हियर द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन व्हेन द फूड कम्स आउट ऑफ द स्टमक, ओके नाउ, इज टू मेक और टू कन्वर्ट द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन. So this process of conversion of acidic, okay now, food or acidic medium of the food into alkaline is done by the bile juice. ये bile juice करता है यहाँ पर. इसके अलावा the bile salts which are present in our bile juice, हमारे bile juice में जो bile salts present होते हैं, ठीक है ना, they help in the breakdown of large globules of fat. कहने का मतलब जो फैट डाइजेशन है, इट स्टार्ट्स हियर, ओके नो, इन द इनिशियल फेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इन द इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स by the bile salts by the process of emulsification of fats. ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है ना, ये होते हैं यहाँ पर और दे आर परफॉर्म्ड बाय द बाइल जूस. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर? हम ये लिखेंगे बाइल जूस विच इज सिक्रेटेड बाय द लिवर, ओके नो, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज कन्वर्टिंग द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड इनटू बेसिक और अल्कलाइन, एंड सेकेंडरीली द बाइल सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द बाइल जूस, okay now, it helps in the emulsification of fats, that is breakdown of large fat globules into small fat globules, so that it increases the efficiency of enzyme action in the small intestine. Okay now, so this is what the role played by the bile juice, okay now, in the process of digestion. So even though it is not performing the process of digestion, but still it is helpful or it is promoting the process of digestion.
ठीक है, तो ये चीज़ हम इस क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, इस आंसर में मेंशन करेंगे कि बाइल जूस जो लिवर सिक्रीट करता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो एसिडिक मीडियम होता है फूड का उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करे, और सेकेंडरीली जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वो हमारे फैट के जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनको ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो दैट इट इज़ ईजी, और ये इंक्रीज करता है हमारी डाइजेशन की एफिशिएंसी को। ठीक है, दीज आर द टू फंक्शंस विच वी गोना मेंशन इन दिस आंसर, ये हमें मेंशन करना है इस आंसर के अंदर। ओके, देन इसके साथ में जैसे मैंने कहा था कि एक इंटरनल चॉइस आपके पास अवेलेबल होती है कि इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, वी हैव टू प्रोवाइड द रीजन फॉर दैट वन। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हमें पता होता है कि वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके नो, दैट मीन्स इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, अंदर से 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, अपर ऑरिकल्स और नीचे वेंट्रिकल्स। ठीक है, इन दिस वे। तो हियर ही इज आस्किंग दैट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, लेफ्ट और राइट साइड जो होती है ना वो एक दूसरे से सेपरेट होती है। वी हैव टू प्रोवाइड द रीजन फॉर दैट वन। इसका रीजन ये होता है कि टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली, क्योंकि हम बर्ड्स और मैमल्स की जब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनके अंदर जो होती है यहाँ पर ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हाई होती है, they have very high requirement of oxygen. So to fulfill that demand or to fulfill the efficient supply of oxygen to the various body cells, internally the heart is separated, that is left and right part of the heart is separated by a septum. ओके, ये सेप्टम से डिवाइडेड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। सो इट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर, हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि द इंटरनल डिवीजन is actually to keep the oxygenated and deoxygenated blood separately, or not allowing the mixing of oxygenated and deoxygenated blood so that it can fulfill the efficient supply of oxygen. Okay, now reason because they have the high energy demands in their bodies, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिमांड जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, बिकॉज देयर बॉडी इज मल्टी सेल्यूलर और मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है ना, एंड एट द सेम मोमेंट दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो दीज पॉइंट्स यू कैन मेंशन आउट इन द आंसर। सो इंटरनली सेपरेटेड so that doesn't allow the mixing of deoxygenated and oxygenated blood so that it can efficiently fulfill the demand or supply of oxygen, and at the same moment it is required to maintain the body temperature. ये दो conditions हम इस आंसर में मेंशन करेंगे। Okay students, that is the answer for our question number 21. Then we'll move to our question number 22. Okay, 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। 22nd में क्या दिया गया है हमारे पास यहाँ पर? We have to state the events which are occurring during the process of photosynthesis. Is it essential that these steps takes place one after the other immediately? तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर ये शो करना है इवेंट्स जो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अकर होती है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जहाँ पर हम पहले इक्वेशन मेंशन करेंगे, दैट इज 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll gonna gives rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये हमारा फोटोसिंथेसिस इक्वेशन होता है। ठीक है, अब इक्वेशन के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दैट इज बाय द क्लोरोफिल। तो ये सबसे पहला और सबसे प्राइमरी स्टेप होता है। सो फर्स्ट स्टेप विच टेक्स प्लेस और फर्स्ट इवेंट विच टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर? नाउ द लाइट एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, दिस लाइट एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
ये सेकंड इवेंट होती है कि जो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके लिए वो क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, ओके नो, दैट मीन्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो उसमें एटीपी जनरेट होगा, NADPH जनरेट होगा, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली है जो लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू केमिकल एनर्जी, ये सेकंड में है। एंड थर्ड स्टेप हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो लास्ट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पर ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इनटू कार्बोहाइड्रेट, ओके। दैट इज द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम ये तीनों इवेंट्स लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, देन वी विल राइट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये नेक्स्ट में लिखेंगे हम, ओके। नाउ इसके आगे इसने हमें क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, क्या ये एसेंशियल होता है यहाँ पर, ठीक है ना। Yes, these steps has to be takes place one after the other, okay no? एक के बाद एक तो होना चाहिए, लेकिन it is not necessary that immediately they should take place. No doubt, सीक्वेंस तो होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर ये इमीडिएटली हो, कि एब्जॉर्प्शन के बाद इमीडिएटली सेकंड स्टेप यही हो, उसके बाद इमीडिएटली थर्ड स्टेप भी हो जाए। इमीडिएटली इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्यों नेसेसरी नहीं है? जैसे एग्जांपल लोगे डेजर्ट प्लांट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं यहाँ पर, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट टाइम, वो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एंड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल बी एक्टेड अपॉन बाय द लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम वेयर दे आर प्रिपेयरिंग द फूड मटेरियल, ठीक है। तो therefore by this we can say that it is not necessary that the steps should take immediately one after the other, immediately हो एक से दूसरे के बाद, okay। That is about the question number 22. Now the next is question number 23. We will be discussing with question number 23. Question number 23 क्या है? We have given a test that can be used to confirm the presence of carbon in a compound with a valency of 4. How is carbon able to attain noble gas configuration in its compounds? ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि मान लो कि उसने हमें एक टेस्ट दिया है जिससे हमें ये कंफर्म करना है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड और उसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को बर्न करेंगे हम यहाँ पर, वी गोना बर्न द सब्सटेंस और द कंपाउंड विच इज गिवन टू अस। सो वी गोना बर्न दिस सब्सटेंस, ओके नो, इन एयर और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो एयर के प्रेजेंस में या फिर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो जैसे ही हम उसको बर्न करते हैं, वी नो दैट इट रिलीजेस CO2 गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जैसे ही आप इसको लाइम वाटर से पास करोगे, इट टर्न्स इनटू मिल्की white, okay no. With this we can make the confirmation that the sub compound which is given to us is consisting of carbon, उसमें carbon present होता है, okay no. How we are going to write? First of all, take the compound and burn the compound in presence of air or oxygen. It gonna give rise the carbon dioxide gas. Collect the gas and pass the gas into the lime water or through the lime water. If the lime water turns milky white, it indicates that the compound which is given to us contains carbon. Okay ना? अब secondary thing क्या होती है यहाँ पर? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन अपनी वैलेंसी को मेंटेन कैसे करता है यहाँ पर? तो रीजन इज कार्बन हियर इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन द शेयरिंग, ओके नो।
कार्बन ना तो डोनेट करता है और ना ही वो गेन करता है. इट नेवर इन्वॉल्व्स इन द डोनेशन, इट नेवर इन्वॉल्व्स इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो हमेशा शेयर करता है यहाँ पर. तो उसके 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा शेयर करता है अदर एलिमेंट्स के साथ में. ओके ना. सो इन दिस वे इट मेंटेन इट्स वैलेंसी, वो अपनी वैलेंसी को मेंटेन कर रखता है यहाँ पर. और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेन कर देगा, जैसे 4 तो है ही और वो शेयर कर लेगा अदर वालों के साथ में, एंड बाय द शेयरिंग इट विल अचीव इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. वो उसको अचीव कर लेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को. ओके, दीज आर द 2 थिंग्स वी हैव टू राइट इन दिस आंसर. ओके स्टूडेंट्स, देन डिस्कस अबाउट, इसमें एक ऑप्शन है आपके पास, इंटरनल चॉइस इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 23. द सेकंड इज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर. तो जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाई अदर एलिमेंट्स. बाकी एलिमेंट्स को अगर एक साथ रखो और अकेले कार्बन को रखो तो कार्बन जितने एलिमेंट्स फॉर्म करता है उनका नंबर काफ़ी हाई होता है. वी हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल्स. हमें इसको जस्टिफाई करना है यहाँ पर. ठीक है ना. अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर, एक तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कार्बन की, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी. Okay, no? Due to the self-linking and catenation property, okay, no? Carbon can form long chains. ये long chains form कर सकता है यहाँ पर. ठीक है ना. जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, it can form more number of compounds. ये ज़्यादा है. Secondarily, availability of 4 valence electrons in its ओके ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर, इट मींस एट ए टाइम इट कैन बॉन्ड और इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ 4 अदर एटम्स. तो एक साथ ये 4 अलग अलग एटम्स के साथ में बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, या 4 कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है यहाँ पर, या बाकी मोनोवैलेंट के साथ में बॉन्ड कर सकता है. तो इसका मतलब ये 2 जो रीजंस है यहाँ पर, सेल्फ लिंकिंग एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ये रीजन है व्हाई द कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. इतने कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर सकता है यहाँ पर. ठीक है ना. फिर इसमें ये भी पूछा गया है कि हम ये भी बता सकते हैं कि थर्ड थिंग इज द साइज ऑफ द कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल. ठीक है ना. स्मॉल साइज होने की वजह से इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स. साइज छोटी होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप होती है, अट्रैक्शन होता है, दैट इज वेरी हाई इन द कार्बन कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. So 3 reasons we'll be writing: the self-linking or the catenation property of the carbon because of which it can form long chains, and the availability of 4 electrons in its outermost shell where it can bond with 4 other carbon atoms or monovalent atoms at the same time. And third is due to the small size of the carbon atom it can form strong and stable bonds. ये 3 reasons हैं which we are going to mention here in this answer. Okay, that is about the 23rd. Okay students, now we will move for the 24th क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर. Okay, there is a following observation which is given to us. यहाँ पर एक observation दे रखी है which is made by a student. So a student was conducting some experiment and he had made a certain observations. Okay, no? By treating 4 metals P, Q, R, S. इसने 4 metals ले रखे हैं यहाँ पर P, Q, R and S. He has taken 4 metals. Now 4 metals को इसने यहाँ पर टेस्ट किया with the given salt solutions. जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, one of the salt solution, then zinc nitrate ZnNO3 taken twice. Okay ना, NO3 taken twice. ये second salt था. Then calcium sulfate, third salt, okay, and sodium sulfate Na2SO4. 4 different salts. Okay. Now, when he tested the metal P, there is no reaction. Then here there is a reaction. Then here also there is a reaction, and here also there is no reaction. But when tested with Q, here there is a reaction, there is a reaction, a reaction and reaction. Here with R, no reaction. Okay, now then here is reaction, there is no reaction, and there is no reaction.
then no reaction, no reaction, no reaction, no reaction. So in this way he has tested, okay, and he has noted down the following observations. Now based on these above observations we have to, okay, now answer the questions. The first question is we have to arrange the given samples in the increasing order of reactivity. हमें increasing order of reactivity में लगाना है. तो सबसे least reactive तो आएगा S. That means the first position will be occupied by the S. S is least reactive. Then followed by, because 3 places R is not reacting, R, okay. Then it will be P, okay, because at 2 places it is not reacting, and Q, okay, now at last, which is highly reactive. Got it? तो increasing order में S सबसे less reactive है, followed by R, then it is P, okay ना, sorry, then at last it is Q. Q सबसे highly reactive होता है. This is the decreasing order of reactivity series. Then B option, write the chemical formula of the products formed when Q reacts with QSO4. If this Q is reacting with copper sulfate, sorry, this is Cu, okay, reacts with, no, it is CaSO4, but he is asking, he has given that we have to mention what happens when this Q is going to react with copper sulfate. What will be the product which is going to be formed? Product formed is QCuSO4, or this Cu will be replaced by the Q. It is a displacement reaction and the compound formed will be QSO4. That means it is a highly reactive metal. It is going to replace the copper sulfate, the less reactive metal, and it will be forming QSO4. The compound formed is QSO4. तो ये 2 आंसर्स है जो हम मेंशन करेंगे. पहले इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमें रिएक्टिविटी सीरीज को डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. S सबसे कम, उससे बहुत ज़्यादा R, उससे ज़्यादा P, और सबसे हाईली रिएक्टिव Q. देन Q कंपाउंड को अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाओगे तो कंपाउंड क्या आएगा, ठीक है ना, Q सब्सटेंस को, देन इट विल बी QSO4. इसका मतलब कि Q जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू द कॉपर सल्फेट. दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 24. Then move with question number 25. Question number 25, a diagram is given for us, ठीक है ना. हमें यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का डायग्राम दे रखा है जहाँ पर एक वाइट लाइट, ओके ना, दिस इज वाइट लाइट which falls on one of the surface, okay, now it enters into the prism, okay, and deviates. So this will be red and this is violet. The 2 colors he has noted. अब क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर. A student observes the above phenomena in the lab as white light passes through a prism. मतलब स्टूडेंट ने इस फिनोमिना को अपने लैब में देखा कि जब व्हाइट लाइट उसने पास करी प्रिज्म से यहाँ पर, तो बाकी among many other colors उसने क्या ऑब्जर्व किया, he has observed the position of the 2 colors, red and violet. 2 कलर्स की पोजीशन को नोटिस किया बाकी कलर्स की कंपैरिजन के अंदर. तो what he had found. Now the question is, what is the phenomena called? इस phenomena को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? This splitting of white light into 7 different colors is known as dispersion कहते हैं इसको. What we call this one? We call this one as dispersion. तो ये dispersion phenomena है आपके पास यहाँ पर. Then the question is, what is the reason for the violet light to bend more than the red light? Violet light red light से ज़्यादा bend क्यों हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना. Now the reason for this one is because we know the speed of the light, that means violet light, okay, no, is, okay, now max is very least. I can say, देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है यहाँ पर, okay, no, so what happens over there? स्पीड जो वायलेट लाइट की होती है ना प्रिज्म के इनसाइड में, वो सबसे कम होती है और रेड लाइट की सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है ना. इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो डिविएशन होता है ना व्हाइट लाइट का, वो सबसे ज्यादा होता है और रेड लाइट का सबसे कम होता है. अगेन आई एम गिविंग, व्हेन लाइट एंटरिंग फ्रॉम ए रेयर इनटू डेंसर मीडियम, ओके ना, तो इट
undergo the process of dispersion. Disperse हो रहा है यहाँ पर. That means the respective colors which are present in the white light they deviates all at different angles. वो disperse हो गए सारे के सारे. हर वो जो कलर होता है यहाँ पर, color of each and every one is different. Okay ना? That means the speed of each and every color is different. Red, okay ना? Violet इन सब की different होती है. तो violet की speed सबसे minimum होती है और red की speed सबसे maximum होती है. इसलिए red सबसे कम deviate होता है और violet सबसे highest deviate होता है. So the reason is as the speed of the violet is very minimum, it deviates most, and the speed of the red is maximum, therefore it deviates very least. ये सबसे कम deviate होता है हमारे पास. Okay now, that is about the question number 25. Okay students, that's all in this video session. तो आज हमने यहाँ पर 21 to 25 5 questions section B के डिस्कस किए. If you have any kind of doubts regarding these solutions, you can ask me, okay ना, by writing in the comments box. Till then students, have a good and wonderful day. Enjoy your day students. Goodbye.